We all have been dealing with a lot since the pandemic has started. Indian healthcare workers are trying their best to control the situation. National Institute of Disaster Management encourages you to take the preventive measures against the coronavirus. Always wear a mask and sanitize your hands frequently. Also follow all the protocols of social distancing. Get yourself vaccinated from your nearest vaccination center. Until then, stay home and stay safe. Very good morning to one and all present here, and thank you for joining us the one-day virtual orientation come online training program of India Disaster Resource Network for Jharkhand State. It's an honor and privilege for me to welcome you all on behalf of the National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, to this one-day virtual orientation come online training program of IDRN. This is the 26th states UTs of India out of 36 states UTs which we have proposed. Already we have completed 25 states UTs of India. I would like to express thanks to all the state and district level officers who is nominated this particular online training program. I also thanks and heartily welcome to Sri Manish Tiwari, IFS Joint Secretary, Disaster Management Division, Government of Jharkhand. Mr. Kamal Logan, Mr. Kamal Logan, Capacity Building Officer, Disaster Management Division, Government of Jharkhand. Myself, Balaji, my colleague Mr. Dharmendra is available here. And now I would like to invite Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasistha, Joint Director, NADM. Before inviting Joint Director, NADM, I would like to say few words about his career and background. So, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasistha is presently the Joint Director of National Institute of Disaster Management. He was commissioned into the Army Ordnance Corps in September 2000. Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasistha is a supply chain management professional with over 20 plus year experience in managing the entire government of supply chain grid. The officer has excelled academically with a master's degree in management apart from logistic management courses with the specialization in ammunition and other warlike stores. The officer has commanded on ordnance unit of prestigious strike corps of Indian Army and have exposure on various command and staff duties in all type of operation and territorial. So I would like to Lieutenant Colonel Dinesh Chandra, please kindly open this webinar. Thank you for giving a brief overview of my career. Thank you very much. I would heartily welcome Shri Manish Tiwari ji, IFS, who have accepted our invitation to join at this short notice, and I thank each one from the government of the state of Jharkhand who have joined at such short notice for this IDRN one-day virtual training program. Here, I'm sorry, I've got some. Yeah. Am I audible, Balaji? Yes, sir, you are audible, sir. You may please go ahead. Okay. I would also like to thank Shri Kamalji, who is from the DM division of Government of Jharkhand, who has made all the arrangements for us to meet on this platform today and to discuss about the IDRN and its importance. Thank you very much, all of you who have joined, who have taken out their time to join for a meet with us in NIDM and to speak, to discuss and learn on this very important IDRN portal, India Disaster Resource Network. As we all know that how important is the resource in today's scenario. Whenever a disaster strikes, we never know when it is going to strike, and with the varied geoclimatic conditions as we are facing today, and as India has been, we are prone to disasters and various types of disasters. So is our state of Jharkhand, as we said today in. We are also prone to disasters, and seeing where the resources are kept, at what place, and what condition is the major
role and focus of this IDRN portal, what the Ministry of Home Affairs through Government of India and with the United Nations Development Program, we have developed this portal. NIDM is managing this portal since June 2008. I will give a brief on the this particular aspect, but before starting on this particular program, I would request Shri Manish Tiwari ji, IFS Joint Secretary DM Division, to give his welcome address to the participants from state of Jharkhand. And over to you, Shri Manish Tiwari ji, for welcome address, please. First of all, a very good morning, and thank you to the Joint Director, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra ji, Mr. Balaji, for effective arrangement and this webinar. We hope that through this webinar we will be able to interact network, and there are certain issues which shall be solved from our which shall be raised from and will get solved from your end. Regarding IDRN network, then also point out that only who are joining this program. First, let me just give a brief introduction about them. Most of them are from the districts. The disaster management, we say it, and they are coordinating with the district authorities for. Then there are some people like Mr. Kamal Lugun and others who are from the secretary and who are sitting here in disaster management division at the capital, and they coordinate with the districts. As for the IDRN, for the common people, I would like to point it out कि IDRN जो है वो एक नेटवर्क है जहां पे हमें ये पता चल सकता है कि कितने रिसोर्सेज आती है, तो उस समय नहीं होगी, हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे बगल वाले जिले में कितने रिसोर्सेज हैं, और हम तुरंत उनसे उन रिसोर्सेज को अपनी सेवा में लेने के लिए आदेश दे सकते हैं। इस तरह से जिससे कि जिसका हम यूज कर सकते, इसके लिए जरूरी है मैं अपने सभी जो जिला के जो DDMOs हैं और जो जिला के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, पहले भी मैंने किया है, से करना चाहता हूं कि ये जो IDRN नेटवर्क है इसका यूसेज तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब हम इसमें अपनी एंट्री उसमें कर लें। ये परंतु चूंकि माइनिंग जिले में, हर जिले में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई माइंस उपलब्ध है, तो हमारे जिले में हेवी मशीनरीज या उससे रिलेटेड जो माइनिंग रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उनको टैकल करने के लिए कुछ मशीन्स उपलब्ध होंगी, कुछ रिलेटेड चीजें रहेंगी, उनका हमारे पास नेटवर्क है ताकि उसे देख सके और अपने बगल वाले जिले को उसकी रिक्वेजिशन कर सके। तो ये IDRN का ब्रीफ यूसेज रहा है। अब सवाल है जो कि सवाल से पहले मैं एक प्रोफाइल देना चाहूंगा कि वी आर नॉट वेरी गुड फॉर द पीपल एंड NIDM। आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट कि वी आर, लेट मी एडमिट इट that we are not very good in terms of updating the report, but we are not very bad. We are somewhere near the top, middle of the top, 8 or 9 something. I think if I see from the ranking, I would be there. There are certain issues. I talk to my people. Some people they will raise the concern in the due courses. Like Dhanbad, I talk. Just send also that they have entered the IDRN on the IDRN portals, but then it is not getting reflected exactly. They are quite they have so
they can get the data like 7, 8, and certain districts they are doing it like they have done it quite well, considering especially that we have very less such equipments and other things which are available with us. But then also whatever be available, we need to feed them. So this is my opening remarks. For the rest of the thing, I hope the district will be able to raise the concern in a proper way and in an elaborative manner. Thank you. Thank you so much, sir. And it was actually यही जो problem areas हैं या जो आपने एक guideline दिया है. So I would request that हम जो है मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, जैसा जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने जो हमें एक गाइडलाइन दी है कि जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं, जैसे पोर्टल पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, आपने एंटर किया, स्क्रीनशॉट भेजा, आई वुड रिक्वेस्ट my colleagues Balaji and Dharmendra are always available online, and it is 24/7 support which we are giving here on this IDRN, because this impetus on the IDRN portal, the importance for IDRN portal, as the Joint Secretary has just said, कि ये आपदा के दौरान पे ये एक IDRN पोर्टल ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही आपदा आएगी, आपदा जो है पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकती है और पड़ोसी स्टेट में भी आ सकती है. सो वहाँ पे जो आपदा प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान है वो इसमें हम लोगों ने IDRN पोर्टल में विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली हमने ये 289 आइटम्स का लिस्ट जो है फ्लोट किया है. So whatever जो आपने suggestion दिए sir, we will look forward to these suggestions more from the participants, and we look forward to your suggestions also in future to guide us on the future of this IDRN portal. Thank you very much, sir. And with this, since your voice was breaking in between and we couldn't hear your, we have skipped about 20 to 30 seconds of your opening remarks. But however, I have got the clue. मुझे पता चला है कि आपका जो है एक importance जो है IDRN पोर्टल के लिए है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट DDMOs को आपने दिया है एक गाइडलाइन, वो गाइडलाइन हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, और हमें भी एक यहाँ से एक अच्छा एक फील है हमारे IDRN स्टाफ में कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. एंड नो डाउट झारखंड स्टेट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सर, एंड यू आर फिगरिंग आउट इन वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स व्हेनेवर द डेटा फीडिंग और द डेटा एंट्री इज देयर. सो टुडेज with this sir, thank you very much. And इसके बाद मैं आज के एजेंडा पे आऊँगा. स्पेसिफिक एजेंडा इज द ट्रेनिंग ऑन द IDRN पोर्टल, जिसमें कि मैं मेरे साथ मेरे कलीग्स बालाजी और धर्मेंद्र के साथ मैं जो है आज का कार्यक्रम, आज की जो ट्रेनिंग है वो हम करेंगे. सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट में IDRN पोर्टल का क्या स्थान है और कैसे IDRN पोर्टल इतना इम्पोर्टेंट है, और विद पर्टिकुलर स्पेशल इम्पेटस टू झारखंड स्टेट, हम किस लेवल पे हैं हम झारखंड में, वो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास है आप लोगों की. सो विद दिस आई वुड स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन. मैं हिंदी में ही बात करूंगा झारखंड स्टेट में. आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी इन झारखंड. सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एज पर द मैंडेट, और जो कि हमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो डायरेक्शंस मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, गाइडलाइन कोरोना वायरस अभी भी है, हम लोग जूझ रहे कोरोना वायरस से, और उनका आदेश और संदेश हम पूरे NIDM वाले, बिकॉज हम डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं, तो हम लोग ये संदेश जो है आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोरोना वायरस अभी है. त्योहारों का सीजन है लेकिन कोरोना वायरस भी साथ में है, तो हमें अपना मास्क, wear your mask properly, wash your hands with soap and water, avoid touching, keep social distance, clean surface regularly wherever you are touching. So इन सब का सही से मास्क पहने, अपने हाथों का साबुन से बार बार धोएं, आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सतह को नियमित रूप से साफ करें. ये इस संदेश के साथ मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट प्लीज.
IDRN, जैसा आपको पता है कि इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसमें हमारे डिजास्टर से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज को इसमें पोर्टल के द्वारा हम सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने पहुंचाया है। NIDM जो है एक सिर्फ इसको डेटाबेस को एक सेंट्रल एजेंसी जो मैनेज कर रही है, लेकिन मेजरली जो है मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट DDMOs के पास है, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिया हैज गॉट अ वेरीड जियो क्लाइमेटिक कंडीशन। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्योग्राफिक कंडीशन है हमारे पास, क्लाइमेटिक अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है पूरे भारत में। कई फ्लड्स प्रोन है, कई अर्थक्वेक है, कई साइक्लोन है, लैंडस्लाइड, सुनामी। और स्पेशली अगर हम झारखंड की, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि जैसे माइन डिजास्टर्स, क्योंकि माइंस हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं झारखंड स्टेट में, तो वो किस तरह के डिजास्टर्स है और उनमें उस आपदा के दौरान कौन कौन सा रिसोर्स जो है वो हेल्प कहाँ पे रखा गया है रिसोर्स। यहाँ हमारा इक्विपमेंट, क्रिटिकल इक्विपमेंट और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये एक नेक्स्ट प्लीज। IDRN एक वेब बेस्ड पोर्टल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है एज ऑन डेट, तो आप इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए इसमें एंट्री करने के लिए। अगर अभी हम हम एक डेवलपमेंट स्टेज में हैं, दिसंबर 2019 में। आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे बात नहीं कर पाए आप लोगों से, बिकॉज वो कहीं पे उनको इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। वो भी इच्छुक थे, बिकॉज उन्हीं के डायरेक्शंस पे, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डायरेक्शंस पे 2008 के बाद 2019 में अक्टूबर में इसका जो प्रारूप है वो हमने बदला है। और वो प्रारूप में ही हम आज आपको कुछ जो हम उस विषय में बात करेंगे, उस विषय में ट्रेनिंग करेंगे। और उस विषय में जो भी आपके सुझाव होंगे नए, जो भी हमने नया पोर्टल आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, उस पोर्टल बारे में हम लोग आज आपके सुझाव भी चाहते हैं। और कोई भी डाउट होता है जिसमें, जैसा कि अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे कि पोर्टल की फोटो भी भेजी आपने, जिसमें कि एंट्री करते हुए आपने स्क्रीनशॉट भेजा और वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ डाटा। तो ऐसे कंडीशंस कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, और हमारे लिए उसमें क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो सब सुझाव आज हमारे साथ आप शेयर कीजिए, अपने पूरे डाउट्स क्लियर कीजिए। और जब ये ट्रेनिंग को हम समाप्त करेंगे, जब एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्लियर होगा आपके उसमें जो भी IDRN से रिलेटेड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2004 में UNDP प्रोग्राम के तहत इस रिसोर्स नेटवर्क को डेवलप करना शुरू किया। 2008 जून में हमें NIDM को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, ये पोर्टल हैंडल करने को मिला। और 2020 प्रिसाइसली 1 जून को हमने नए पोर्टल की जो एक इनॉग्रेशन किया है, जिसमें कि आज आप जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पोर्टल है, जो कि हमने यूजर फ्रेंडली, सिक्योर्ड, काफी अच्छा नेटवर्क हमने बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट प्लीज। ऑनलाइन पोर्टल है, लेकिन इसका ऑफलाइन मोड भी हम जो है तो जल्दी लेके आएंगे आपके सामने, जिसके सामने जब भी आप डाटा एंटर करेंगे उस टाइम आपका डाटा जो है आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। क्योंकि आपदा के दौरान सबसे पहले इंटरनेट जो है वो ब्रेक होता है, इंटरनेट लाइंस ब्रेक होती हैं, और आप जो है इंटरनेट आपका बंद होता है, तो इस डाटाबेस को आप देख नहीं पाते हो। तो इस डाटाबेस को ऑफलाइन मोड में भी हम लोग अभी आप तक पहुंचाएंगे जल्दी ही। अभी हमने शुरुआत करी है, जो नया पोर्टल एक आपके सामने आज हम इसको दिखाएंगे, वो बिल्कुल एक नया प्रारूप दिया गया हमने। डाटा जो भी आपका पुराना था वो इसमें हमने माइग्रेट कर दिया, बट कोई और दिक्कत होने से किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वो अभी हमसे डिस्कस करेंगे। बालाजी और धर्मेंद्र आपको पूरा दिखाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या स्टेटस है हमारे पास NIDM की सर्वर में। NIC के सर्वर पर ये IDRN पोर्टल है, जो कि सिक्योर्ड सर्वर है। बट मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि साइबर अटैक्स 2-3 बार हो चुके हैं इसमें पहले। हमारे जो भी दुश्मन एलिमेंट्स हैं, एनिमिकल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इस पे अटैक किया है 2-3 बार। हमारे पास ये रजिस्टर हुए हैं ऐसे अटैक। तो जो भी आप हैं, DDMOs हैं आप डिस्ट्रिक्ट के, तो आप जरूर इसका पासवर्ड वगैरह जो है अपना ध्यान से रखिए। जो भी पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी की है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सभी इस पे देख रहे हैं कि हमारा आपदा प्रबंधन में हमारी कितनी तैयारी है। आपदा कोई बाढ़, फ्लड, अर्थक्वेक नहीं, आपदा कुछ भी हो सकती है। जैसा कि अभी जयेश साहब बता रहे थे कि माइन में भी डिजास्टर्स आपदा आ सकती है, माइंस में, क्योंकि पूरा झारखंड स्टेट जो है माइन से भरा हुआ है। तो उस दौरान हमारे को कौन सी इन्वेंट्री कहाँ क्या पड़ी हुई है
तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास है, आप फीड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, लेकिन ये किसी गलत हाथों में पड़ती है तो वो कुछ और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर रोल जो है डीडीएमओस का है इस पूरे पोर्टल को मैनेज करने के लिए। जितने भी डेटाबेस है अगर आप एंटर करते हैं वही एंटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है एनआईडीएम में। एनआईडीएम के पास कोई भी तरीका नहीं है कि आपका जो डेटाबेस है वो हम अपने एंड से उसमें एंटर करें। तो मेजर रोल लाइन डिपार्टमेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसको कि हमने पासवर्ड और लॉगिन आईडी दी हुई है। ये मैंडेट जो है एनआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंडेटेड है कि डिस्ट्रिक्ट वुड बी द लास्ट की, जहां पे कि लास्ट अथॉरिटी जहां पे कि इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा टू मेंटेन सम सेम्बलेंस, टू मेंटेन सम कंट्रोल एंड टू मैनेज दिस पोर्टल वेल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कंट्रोल छोड़ा गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये पूरे जो आईडीआर का डाटाबेस कलेक्शन का प्रोसेस है, ये फॉर्म A 2 अल्फा 2 ब्रावो 2 चार्ली है। धर्मेंद्र और बालाजी आपको इन चारों फॉर्म्स के बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। सारे यूनियन टेरिटरीज और ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज इस पोर्टल पे सब लॉगिन हैं, सब ने रजिस्टर किया हुआ है। 717 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आउट ऑफ 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस पे रजिस्टर्ड हैं। 36 कैटेगरी के आइटम्स हैं, 289 टोटल आइटम्स हैं। अगर आपको इस पे आइटम कुछ ऐड कराने, जैसे कि अभी मैं सोच पा रहा हूँ, पहली बार मुझे जब हमने ऐसे इंटरेक्ट किया है इस आईडीआरएम पोर्टल को लेकर कि जैसे माइंस में है, माइंस में क्योंकि हम यहाँ पे एक टीम बैठती है एनडीएमए के चेयरमैनशिप में, और हम सारे स्टेट्स का हम इसमें देखते हैं कि किस स्टेट में कौन सी आपदा आ सकती है। तो मेजरली हम सारी कवर कर लेते हैं, लेकिन ये जैसे माइन है, माइन में ऐसा क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि माइन की कैजुअलिटीज को जल्द से जल्द इवैक्यूएट करे। वहाँ पे माइन जहाँ पे कोलैप्स हुई या कुछ वहाँ पे स्लाइड होके लैंडस्लाइड हो गया या दब गया है वहाँ पे कुछ एरिया, वहाँ पे जाके कैसे आपदा को प्रबंधन किया जाए, वहाँ कैसे आपदा को मैनेज किया जाए, उस इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, उसके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट आपको चाहिए वो आप जो हमें लिस्ट दीजिए। क्योंकि मैं जो ये लिस्ट देख रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि अभी भी कुछ गुंजाइश है जिसमें कि कुछ और आइटम आपदा प्रबंधन, वो भी माइन से रिलेटेड स्पेशल। अगर हम झारखंड स्टेट को देखें तो बहुत कम आइटम्स हैं जो कि आपको स्पेशल है। हाँ, जेनरिक आइटम हमने सारे दिए हुए, जैसे जेसीबी हो गई, एम्बुलेंस हो गई, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, या कोई और मेडिकल इक्विपमेंट हुआ, डॉक्टर्स हुए, ये सारी चीजें तो हमने दी हुई है। लेकिन स्पेशल कोई ऐसा इक्विपमेंट है, कोई ऐसी क्रेन है, कोई ऐसी लिफ्ट्स हैं जैसी जो कि आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट है जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उस जनरल एरिया में जो कि नीचे हैं ग्राउंड लेवल के, वो सारे इक्विपमेंट जो हैं वो आप हमें बताएं और हम इसमें जो है उनको ऐड करेंगे, उस कमेटी के पास लेके जाएंगे इन आइटम्स को विद स्पेशल कंसिडरेशन टू माइन डिजास्टर्स और माइन इमरजेंसीज। सो एक्सीडेंट्स जो भी माइन से रिलेटेड होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट आप हमें लिस्ट दें और वो हम इसमें ऐड करेंगे। I'm not able to see the next, Balaji. One second. Yeah, this is the status of Jharkhand state. हम किस जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जैसा कि अपने जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम जो हैं कहीं कम नहीं है और हम ज़्यादा भी नहीं है, हम बीच में हैं, लेकिन हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भी हम फर्स्ट है कि लास्ट है इस चीज़ में, ये हमारे पास हम हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए, बट हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए बिकॉज हम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर से हम जिन्होंने कि आपदा के दौरान हमने ही फर्स्ट है जो कि बताना है स्टेट रिस्पॉन्डर्स को, चाहे वो एनडीआरएफ टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो जो कि वहां पे जा रही है जहां आपदा आई है, उनको हमने ही बताना है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इन रिसोर्सेज को इस पोर्टल पे डालने के लिए जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने ये जो पोर्टल है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर या इमरजेंसी इस पोर्टल से काफी जानें जो हैं बचाई जा सकती है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लाइफ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमें उस दौरान हमें पता है कि एक जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उस चीज के लिए ये सारे इक्विपमेंट जो हमने इसमें 289 आइटम्स दिए हुए हैं, ये आपको वहां पे काम आएंगे। सो एक मानवता के नाते या एक हमारी ड्यूटी के नाते या रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते हमें ये लिस्ट जो है वो हमें अपडेट करनी है। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आपके लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में पिछले 1 महीने में किसने कितनी एंट्री करी है वो सामने आपके है।
Bokaro 63 entry, Chatra 0 entry, Dumka 0 entry. So I would request as JS has directed, आप श्री मनीष तिवारी जी ने अभी डायरेक्शंस दिए हैं आपको कि आप ये एंट्री कीजिए, और कुछ जैसे कि अभी धनबाद डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दे रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, इसमें बता रहे थे कि उनकी एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो अभी हमारे ये धर्मेंद्र और बालाजी दोनों आपके सामने चेक करेंगे कि कौन सी एंट्री आपने कब करी थी, वो आपको अभी बताएंगे कि भी वो एंट्री आई नहीं आई, और नहीं आई तो क्यों नहीं आई वो आपको बताएंगे, और सॉल्यूशन देंगे कि आइंदा से आप कैसे एंट्री कीजिए, सो दैट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड हेयर फॉर झारखंड स्टेट। एंड आई एम ग्लैड दैट हम आज बैठे हैं और हम इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। IDRN ये रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी बात से कि अगर टाइम ऑफ डिजास्टर्स में ह्यूमन लाइफ्स को हम सेव कर सकते हैं अगर ये लिस्ट हमारी अपडेटेड है तो। नेक्स्ट प्लीज। These are the other districts. Quite healthy figure, but we need to pull up. हमें बहुत अच्छे फिगर्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमारे को और हम चाहेंगे कि इस जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है, ये तो आपदा आ गई जो हमारी कोरोना है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता हमने पिछले जब से ये बना है 2004 से पोर्टल बना है, अब हम 2020 में बैठे हैं, पिछले 16 साल में हमने इस विषय पे कभी भी DDMO से बात की हो। सो ये कोरोना का ही एक वो है आफ्टर इफेक्ट्स है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं, और इतना इम्पोर्टेंस इस IDRN पोर्टल को दिया गया है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि PP मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर की जब कमी हो गई थी उस टाइम ये जो IDRN पोर्टल है इसको यूटिलाइज करके काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट थे या पड़ोसी स्टेट से उनसे मास्क PP और ये सारे इक्विपमेंट जो है इस पोर्टल की मदद से जो है वो सप्लाईज हुए थे, और वो क्रिटिकलिटीज को उस टाइम की क्रिटिकलिटी को खत्म किया गया था इस पोर्टल की सहायता से, और काफी जिंदगियां बची हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं कि जैसे इस पोर्टल को यूज करके उन्होंने किया है। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने भी फ्लड्स के दौरान जो है इस पोर्टल का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्लीज। उन्होंने अपना एक API डेवलप किया, हमसे बोला कि API डेवलप करो, हम डाटा यूज करना चाहते हैं, सो हम वो API भी डेवलप करके दिया हुआ है, आप भी इसको यूज कर सकते हो, और आप हमारा डेटाबेस जो अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो। 2020 का आप स्टेटस देख सकते हैं, जब से हमने स्टार्ट किया जुलाई ऑनवर्ड्स हमने स्टेट से बात करनी शुरू करी है ऐसे ओरिएंटेशन कैप्सूल से, और काफी इफेक्टिव अगर आप ग्राफ देखेंगे 2019 में अगर 17,000 एंट्री थी तो 2020 में 83,000 एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं इस पोर्टल में। लास्ट 5 साल में दिस इज दी हाईएस्ट इफ यू कैन सी। ये जब हम आपके पास अब हम इस तरीके से संवाद कर रहे हैं, हम बैठे हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, सो ये एक मैं चाहूंगा कि एक डायलॉग रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, आगे जब बालाजी और धर्मेंद्र आपसे बात करेंगे तो जरूर उनसे बात कीजिए, जहां प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन लेके जाइए। अगर रिजोल्यूशन नहीं होता तो बालाजी और धर्मेंद्र आपको दोबारा से ईमेल के थ्रू या किसी, अगर आपने फिर से ऑनलाइन आना है तो हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन आने के लिए, और आपका वहीं पे हम रिमोटली आपको मदद करेंगे। लेकिन ओनली रिक्वेस्ट या अपेक्षा आप लोगों से यही है कि डेटाबेस एंटर करें और उस डेटाबेस को जो है हम उसको बढ़ाएं, अपने उसको IDRN का API जैसा मैंने आपको बताया था हमने डेवलप किया हुआ, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अपने डेटाबेस, इस डेटाबेस को अपने किसी भी प्लान के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज। बिहार स्टेट यूटिलाइज कर रहा है, आपका पड़ोसी स्टेट उड़ीसा स्टेट यूटिलाइज कर रहा है, आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज करना है, जो भी करना है, तो आपको नहीं पता तो हमारे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसका यूसेज कैसे। ये भी हमने जुलाई के महीने में डेवलप किया है, नया API है, इसको हम data.gov.in पे भी अभी डालेंगे, जिसमें कि डेटाबेस को आप कहीं पे भी किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये नया डैशबोर्ड है जो मैंने आपको बताया था, 1 जून 2020 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसी पे हम आपको लाइव जाके इसी पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आज की ट्रेनिंग क्या, इट विल बी अ डायलॉग। आपको सबको पता है कि भी कैसे है, क्या है IDRN पोर्टल, नया क्या है उस पे हम आपको बताएंगे, बस नया क्या है। तो कृपया करके आप जब यहाँ से उठें, जैसा कि हमारे को डायरेक्शंस मिले हैं आपके अपने जॉइंट सेक्रेटरी साहब से, तो जब हम उठेंगे तो हम इस पे कुछ सीख के ही उठेंगे आज। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जैसे मैंने बताया 24 घंटे और 7 दिन हम अवेलेबल है। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। हम चाहते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो डेटाबेस है आपका वो एंटर होए,
और इसका जब हमारा आपदा का हमें नहीं पता, अब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए कि हमेशा अपना डाटाबेस को हम अपडेट रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अब मैं हैंड ओवर करूंगा बालाजी और धर्मेंद्र को, जो आपको लाइव लेके जाएंगे पोर्टल पे और आपको एक एक डैशबोर्ड को समझाएंगे कि क्या क्या उसमें एंट्री आप कर सकते हो, और जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज है, जहां जहां प्रॉब्लम है, वो आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसका रिजोल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू बालाजी। Thank you, Lieutenant. Thank you so much. Really wonderful, insightful, your detailed presentation about this idea and sir. I also thanks to Mr. Shri Manish Tiwari sir, Joint Secretary, for giving the wonderful opening remark for this online training program. And definitely will take on high priority whatever you given the suggestion and feedback on this particular idea and portal, sir. So now I will be going to show the live demonstration how this what we have made this new idea and portal. What are the functionality? What are the modules we have integrated? So I will be going to take next 15 to 20 minutes. Hardly I request to all the district officers, please kindly carefully watch this particular session. If you have any concern query, or doubt or regarding any clarification, any suggestion, any complaint regarding this particular idea and portal, you may please write in your chat, write in the chat box as well. So after completing my live demonstration, we will be going to take all of you, each and every district. You can please raise your question or doubts. You can ask. We will be come back to the discussion session also. So not a issue. Request to all the disabled, please kindly mute your mic while during the online training program. There will be no disturbance. So after finishing my demonstration, we'll come back to the discussion session. Dharmender, are you available? Okay, Dharmender, you may please go ahead with the Hindi, Dharmender. That would be better. Okay. Please share your screen. I will be going to make presenter. So my colleague Mr. Dharmendra is going to take next hardly 15 to 20 minutes. I request to all the district officials, please kindly mute your mic, carefully watch this session so that it could be useful for you all. Good morning everyone. Myself Dharmendra Yadav, IDRN developer from IDRN administrator. सर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके सभी DDMO और जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको ऑपरेट करेंगे कि इस डेटा प्लेटफॉर्म पर कैसे इक्विपमेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये जो है होम पेज है, होम पेज पर हमने कंट्री वाइड क्वेरी बना रखा है। इसमें कोई भी जनरल यूजर्स कोई भी इक्विपमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसको अपने स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के नेम में वो ऑल डिस्ट्रिक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ डेमो के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो आइटम है हमने उन्हें 3 कैटेगरी में बांट रखा है, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मेडिकल सप्लाईज। अगर कहीं भी किसी आइटम से रिलेटेड डिजास्टर है, जैसे गैस कटर है, उसकी जरूरत है, तो वो आइटम के अंदर सिर्फ इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। अगर कहीं उसे सारे आइटम्स देखने हैं तो सिलेक्ट ऑल कर सकता है। सिलेक्ट ऑल करने पर जितने भी 289 आइटम है उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। फिर यहाँ पर जाकर के ये कंट्री वाइड इन्वेंट्री रिसोर्स लिस्ट है, इसमें जाकर के वो किसी भी स्टेट किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का इन्वेंट्री जो है चेक कर सकता है कि ये इन्वेंट्री कहाँ पर रखा हुआ है, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट का एड्रेस क्या है। तो ये जनरल यूएस के लिए कोई भी यूएस जो है कहीं भी डिजास्टर होता है तो इस लिस्ट में जाकर के वो उस इक्विपमेंट को जो है फाइंड कर सकता है, उस संबंधित व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी जॉइंट डायरेक्टर सर ने एक्सप्लेन किए हैं कि सारे स्टेट हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। ये टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जैसे झारखंड स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनको हमने यूजर आईडी और पासवर्ड जो है दे रखे हैं, जिसके थ्रू वो पोर्टल को एक्सेस करते हैं। रेड कलर एक्सप्लेन। ये रेड कलर और ब्लैक कलर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो रेड कलर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं
ये नॉन रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं आईडीआर पोर्टल पर। अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जिसके लिए हमने मेल कर दिया है उनको। बाकी झारखंड स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। If in case any new district from the government from the state of Jharkhand, I request to the concerned state officials and district official who is attending this particular webinar, apart from this list, if there is any new district created from the state of Jharkhand, please kindly let us know, so that we will include that new district in our database as well, so that we will be sending the user ID password to the particular concerned new district. That's all. Thank you, Dharmendra. You may please go. हमारे पास 289 आइटम्स की लिस्ट है। इसमें जाकर आपके पास जो भी आइटम है, जो आईडीआर प्लेटफॉर्म पे जो आपको जो है इंसर्ट करना है, एंट्री करनी है, तो यहाँ पे जाकर के आप लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं कि जो आइटम आपके पास अवेलेबल है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके लिए हमें मेल कर सकते हैं उसके लिए कि ये आइटम हमारी लिस्ट में नहीं है और ये आइटम जो है महत्वपूर्ण है और इसको इस लिस्ट में जो है सम्मिलित किया जाए। यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल बना रखा है कि किसी भी आइटम को आपको उसका फर्स्ट लेटर टाइप करना है, उसका फर्स्ट लेटर टाइप करोगे या उसका फुल लिखोगे तो वो आराम अपने आप से जो है लिस्ट में शो होने लगेगा। यहाँ पे जाकर के आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये मास्क है, ये क्रिटिकल सप्लाईज कैटेगरी के अंदर आता है और इसकी एक्टिविटी हेल्थ सर्विस में यूज होता है। ये इस लिस्ट को हम जल्दी चेंज करने वाले में यहाँ पर हमने जो है प्रत्येक आइटम की सेल्फ लाइफ को जो है डिफाइन कर दिया है कि कौन सा आइटम उसकी सेल्फ लाइफ क्या है। जैसे ट्रक होता है, व्हीकल्स होते हैं, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है कि इस ट्रक की सेल्फ लाइफ 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, या इस मास्क की सेल्फ लाइफ कितनी है। उसके लिए हम जल्दी इस लिस्ट को अपडेट करने वाले हैं। डेटा स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें हम प्रत्येक मंथ जो है प्रत्येक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स को और स्टेट वाइज रिपोर्ट को जो है अपडेट करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो एंट्री फिल की जाती हैं, रिकॉर्ड्स फिल की जाते हैं, उनकी मंथली रिपोर्ट्स को जो है शो करते हैं यहाँ पर। ये झारखंड स्टेट की लिस्ट है। ये फर्स्ट जो कॉलम है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसमें 3 मंथ्स की है और सेकंड वाला जो है उसमें 1 मंथ की रिपोर्ट्स है। बोकारो ने लास्ट 3 मंथ में 51 रिकॉर्ड्स अपडेट किए थे और लास्ट 1 मंथ में 27। ये स्टेट वाइज रिपोर्ट है। यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि झारखंड स्टेट ने लास्ट 3 मंथ्स में 717 रिकॉर्ड्स और लास्ट 1 मंथ में 340 रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं। सेकंड मेन्यू जो है उसमें आईडीआरएन के बारे में बताया गया है कि आईडीआरएन कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमारे जॉन डायरेक्टर सर ने बताया कि आईडीआरएन कैसे वर्क करता है। रिसोर्स इन्वेंटरी, ये एक पर्टिकुलर पेज बनाया गया है कि किसी भी जनरल यूजर्स को जो है डायरेक्ट जाकर के यूज करना है तो स्टेट को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उस कैटेगरी आइटम्स को सिलेक्ट करके वो यहाँ से डायरेक्ट जो है उस आइटम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहाँ से भी जो है ना आइटम के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आइटम का नेम क्या है, उसका कोड नंबर क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी, सारी की सारी जानकारी यहाँ इस लिस्ट से मिल जाएगी। ये लिस्ट जो है और होम पेज पर जो लिस्ट हमने अभी दिखाई थी इसे हम जल्दी अपडेट करने वाले हैं। इस लिस्ट में हम आइटम्स की इमेज वगैरह भी इंक्लूड करने वाले हैं जिससे उसके बारे में पता चल सके। बहुत सारे यूजर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये आइटम क्या आइटम है, तो उसकी इमेज भी हम उसमें इमेज कॉलम भी ऐड करने वाले हैं। 4th मेन्यू में आइटम्स के बारे में बताया गया है जिसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं। इसकी जगह दूसरा कुछ है जो लगाने वाले हैं। 5th में यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में बताया गया है कि किस तरह से काम करना है, आईडीआरएन कैसे वर्क करता है और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स की लिस्ट है और उस लिस्ट को प्रत्येक कैटेगरी और एक्टिविटी और में बांट रखा है कि ये आइटम जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसकी एक्टिविटी क्या है, सबको डिफाइन कर रखा है इस लिस्ट में जाकर के आप। ये डाटा फॉर्मेट है। ये डाटा कलेक्शन फॉर्म जो है ये लाइन डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के द्वारा भेजा जाता है और लाइन डिपार्टमेंट इस फॉर्म को फिल करके लाते हैं कि जो आइटम है उसका उस डिपार्टमेंट का नेम क्या है, उसकी एजेंसी, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, उसकी डेजिग्नेशन। जो डिपार्टमेंट है जो आइटम के रख रखाव को देखता है उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका टेलीफोन नंबर, ये जो है लाइन डिपार्टमेंट इसको फिल करके लाते हैं। ये 2A
2B 2C ये तीनों फॉर्म सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमने ऐसे जो लाइन डिपार्टमेंट है उनकी उनकी जो वर्क करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी कर रखा है कि जैसे 2A फॉर्म है, इसको जो है सिर्फ इक्विपमेंट के लिए हमने बना रखा है कि इसमें सारे इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है ना आइटम को जो है फिल करें। 2B फॉर्म जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से, जैसे कि मेडिकल टीम है, ड्राइवर है, उसके रिगार्डिंग बना रखा है कि इसमें सारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फिल करें। थर्ड, क्रिटिकल सप्लाईज, जैसे क्रिटिकल सप्लाईज में मास है, हेलोजन की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, उसके लिए ये फॉर्म बना रखा है जिससे कंफ्यूजन पैदा ना हो। उसके लिए हमने इन फॉर्म को जो है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 4th मॉड्यूल में हम यहाँ से लॉगिन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से IDR पोर्टल पर रिसोर्स की एंट्री की जाती है, किस तरह से उसको अपडेट किया जाता है, किस तरह से उसको अगर अवेलेबल नहीं है तो डिलीट करना है। तो ये हमने एक रखा है जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है एंट्री की जाती है। जैसे आप लोगों को पता है ये डैशबोर्ड पेज है, जैसे ही यूजर कोई भी लॉगिन करता है तो ये डैशबोर्ड पेज पे आता है, और डैशबोर्ड पेज पे आने के बाद में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा DMDC प्रोफाइल के बारे में। तो ये मैंडेटरी है DMDC प्रोफाइल कि एवरी 6 मंथ के बाद इस प्रोफाइल को अपडेट करना मैंडेटरी है कि कहीं भी मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जिसका ट्रांसफर हो जाता है या उसकी मोबाइल नंबर या उसका एड्रेस वगैरह कुछ भी जो है अपडेट होता है तो उसको यहाँ मैंडेटरी है, जिससे हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट कर सकें। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो DMDC प्रोफाइल है इसको अपडेट करना मैंडेटरी है। सेकंड, आइटम कोड के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कोड और उसके नेम लिखे हैं, जिससे मतलब कोई भी लॉगिन करता है और उसको यूज करना है तो यहाँ से जाकर के डायरेक्ट कॉपी पे करता है उस आइटम को। ये डेटा स्टेटस रिपोर्ट है, स्टेटस अभी वर्क नहीं कर रही है, इसमें हमने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का डेटा डिपार्टमेंट वाइज के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनका डेटा एंट्री का क्या है उसको इसमें स्टोर कर रहा है। वो जल्दी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये यूजर मैनुअल है जिसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, और ये ट्रेनिंग वीडियो है। ट्रेनिंग वीडियो में हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से डेटा एंट्री करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो की सहायता से वो जो है डेटा एंट्री करने में मदद मिलेगी। डेटा कलेक्शन फॉर्मेट के बारे में मैंने जल्दी हम ना नोटिफिकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, और मे बी नेक्स्ट मंथ में जो है यहाँ पे ये जल्दी से ये डैशबोर्ड जो है हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड और DMDC प्रोफाइल से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन होंगे कि अगर किसी DMDC की कोई प्रोफाइल है और उसको आपने 6 मंथ से अपडेट नहीं, आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप इस प्रोफाइल को जो है अपडेट कीजिए, उनका नेम या उनका कहीं तबादला हुआ है उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। दूसरा, आइटम से रिलेटेड, जैसे कोई आइटम है उसकी सेल्फ लाइफ निकल गई है, अभी हम उसमें सेल्फ लाइफ का भी प्रोविजन करने जा रहे हैं, तो कोई आइटम है जिसकी सेल्फ लाइफ निकल गई है तो उसको यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देगा कि ये आइटम जो है पुराना हो गया है, इस आइटम को आप अपडेट कीजिए, या उस आइटम से रिलेटेड कोई भी फील्ड जैसे उसकी लोकेशन सही से नहीं फिल हुई है, या कोई भी मतलब फील्ड ऐसा है जो डिजास्टर के टाइम पे हमें उसको जो एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, उससे रिलेटेड जो है आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा कि इस को सही से जो है ना अपडेट कीजिए। और उसके डिपार्टमेंट, तीसरा होगा डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग कि कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें उसका किसी कॉन्टेक्ट पर्सन का डेजिग्नेशन नहीं है, या उसका एड्रेस फिल नहीं हुआ है, या उसका मोबाइल नंबर नहीं है, या उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा कि संबंधित डिपार्टमेंट में जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका मोबाइल नंबर नहीं में फिल है, या उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, और जो डिपार्टमेंट एजेंसी है उसका जो है कब से आपने उसको अपडेट नहीं किया है, उस सबसे रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशंस होंगे। सेकंड, ऐड टू इन्वेंट्री, इसमें ना हमने 2 सब मेनू बना रखे हैं, ऐड रिकॉर्ड और मॉडिफाई रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड में फर्स्ट एंट्री होती है, जैसे कोई डिपार्टमेंट है फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होने जा रहा है तो उसके लिए हमने बना रखा है ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड में कोई न्यू डिपार्टमेंट जो है जनरेट हुआ है तो उसको सबसे पहले यहाँ उस डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, ओनली 1 टाइम उस डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद में उस डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करना है।
अगर वो डिपार्टमेंट जो है बंद हो गया तो उसको सिर्फ डिलीट ही करना है, वरना आपको बार बार, जैसे हमारा ओल्ड पोर्टल था तो उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना बार बार फिल करनी पड़ती, एक आइटम की एंट्री के लिए सारे फील्ड्स को जो है ना फिल करना पड़ता था कि उस आइटम का डिपार्टमेंट नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। जबकि आइटम एक आइटम है, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल आइटम होते थे, है ना, और उसके लिए बार बार सारी एंट्रियां करनी पड़ती थी। इसके लिए हमने ना इसको जो है थोड़ा स्मूथ बनाया है, और एक बार ही आपको सिर्फ डिपार्टमेंट की एंट्री करनी है। जैसे मैं यहाँ पर लाइव डेमो दिखाऊंगा, ये डिपार्टमेंट का नेम, मैंने डमी डिपार्टमेंट का नेम यूज किया है एज ए ट्रेनिंग। ठीक है, आप जो एक्चुअल जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसका प्रॉपर एड्रेस फिल करना है डिपार्टमेंट का, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, उस व्यक्ति का नेम जो इस आइटम के रख रखाव को देख रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो मैनेजर है या उसकी कोई अदर डेजिग्नेशन है। अगर वो अपना मोबाइल नंबर देना चाहता है तो ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास ऑफिस का कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है। बाकी कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर 2, 3 ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है, फैक्स नंबर आजकल यूज भी नहीं होता तो नॉन मैंडेटरी है, लेकिन कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी मैंडेटरी फील्ड है। यहाँ पर जीमेल, जीओवी, एनआईसी सारी ईमेल आईडी जो है स्वीकार्य हैं। अब मैंने यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिया है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कि प्राइवेट कंपनी होगी जिसके पास इक्विपमेंट होगा, तो यहाँ पर रिसोर्स में हमें सिर्फ वही सिलेक्ट करना है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पीएस यूनिट सिलेक्ट करनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट यूज करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिससे ना हमें उस आइटम को ना फाइंड करने में आसानी हो सके। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत कर देते हैं, यहाँ पे अगर हमने गवर्नमेंट चूज कर लिया तो हम उसको गवर्नमेंट में जाकर के ढूंढेंगे और हमें उस आइटम को जो है ना फाइंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे मैंने ये जो है डिपार्टमेंट एजेंसी की कॉन्टेक्ट डिटेल फिल कर दी, जैसे लाइन डिपार्टमेंट को जो हमने आइटम डिपार्टमेंट एजेंसी का जो फॉर्म था वो लाइन डिपार्टमेंट फिल लेकर के आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो इस को फिल करता है। अगर यहाँ पे फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है या मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर गलत हो जाता है तो उसे यहाँ पर तुरंत भी जो है ना उसको सही भी कर सकते हैं, तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मॉडिफाई कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे जाकर के कुछ भी मिस्टेक होती है तो उसे तुरंत हैंड टू हैंड मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपने एक जो है डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड कर दिया। अब इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ना आप मल्टीपल आइटम्स जो है, मल्टीपल आइटम रिसोर्स जो है ना अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सीधे यहाँ से डायरेक्ट जाना है, क्लिक हेयर टू ऐड इन्वेंट्री रिकॉर्ड। यहाँ पे जाकर के आपके पास उस आइटम जो है उसका फर्स्ट लेटर आपको टाइप करना है, उसकी पूरी स्पेलिंग आपको आती है तो पूरी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मास्क टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर हम जल्दी ना आपको यहाँ पर ये यूनिट है ना, यूनिट भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेगी, ये भी ना ऑटोमेटिक आएगी। जैसे आप मास्क की जो भी यूनिट होगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना अपने आप जो है इस फील्ड के अंदर आएगी। और यहाँ पर जल्दी हम ना आइटम की इमेज भी आएगी और आइटम की सेल्फ लाइफ भी आएगी। अभी हम यहाँ पर 2 नए फील्ड जो है ऐड करने वाले हैं। मास्क, जैसे मास्क की क्वांटिटी क्या है, आपके पास कितने 500 मास्क अवेलेबल हैं। अब उसकी इजेक्ट लोकेशन, उस आइटम की इजेक्ट लोकेशन यहाँ आपको फिल करनी है, जो लाइन डिपार्टमेंट ने आपको फिल करके दी उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है कि वो जो भी आइटम जहाँ से भी पेपर के द्वारा फिल करके लाते हैं तो उस आइटम की इजेक्ट लोकेशन लेकर के आए, जिससे उसको फाइंड करने में आसानी हो सके। यहाँ पर आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है कि ये जो आइटम है मास्क किस टाइप का है, जैसे मास्क कई टाइप्स के होते हैं, N95 या कुछ भी है, उसके बारे में आपको डिस्कशन देना है। ये हमने ना फर्स्ट जो है एंट्री कर दी, एक आइटम को एंटर कर दिया। अब आपको ना सिर्फ आइटम ही एंटर करने हैं, यहाँ पे बार बार आपको डिटेल नहीं उसकी फिल करनी है। जैसे दूसरा आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ सीटी स्कैन, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी इजेक्ट लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर है या कहीं दूसरी जगह पर है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि ये सीटी स्कैन किस टाइप का है। मैंने यहाँ पे 2 एंट्री कर दी, एक डिपार्टमेंट को एक टाइम क्रिएट किया है, लेकिन आइटम्स को हम ना मल्टीपल टाइम जो है ना एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ आइटम्स की एंट्री करनी है, डिपार्टमेंट को बार बार क्रिएट नहीं करना है। अब मॉडिफाई रिकॉर्ड में जाकर के हम चेक कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट, ये हमने अभी डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर,
यहाँ से जाकर के भी अगर हमने कोई गलती कर दी फिल करते टाइम पे, तो यहाँ से जाकर के भी हम ना डिपार्टमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ये डिपार्टमेंट है नहीं है, गलती से फिल हो गया, तो उसको यहाँ पे जाकर के डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना एक्यूरेट आइटम्स चाहिए जिसकी जो ना डिजास्टर के टाइम पर ना हम उसको यूज कर सकें। अब ये आइटम्स जो है डिपार्टमेंट डिलीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ना हमने 2 आइटम्स को जो है ना अपडेट कर दिया है। तो पहले जाकर के आपको आइटम डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है ना डिपार्टमेंट डिलीट होगा। अगर आपको यहाँ से इसी डिपार्टमेंट में दोबारा से कोई एंट्री करनी है, तो आप यहाँ से तुरंत जाएं, यहाँ से ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करें, फिर दोबारा से आइटम्स की आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे ऐसे ही डमी यूजर बनाया है, उसके लिए एंट्री कर रहा हूँ एज ए ट्रेनिंग। आपको जब भी डेटा फिल करना है तो आइटम की लोकेशन, उसकी क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर फिल कर। ये मैंने 3 आइटम्स जो है एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एंटर कर दिए। जाकर के देख सकते हैं आइटम लिस्ट में आइटम्स जो मैंने आज एंट्री की है, इन 3 आइटम्स की, आइटम का नेम, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कितनी क्वांटिटी है। अगर 1 मंथ जैसे मास्क है, ठीक है, मास्क आज हमने कितनी यूज कर ली है और 2 दिन के बाद मास्क की जो है क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, तो आप यहाँ से आकर के तुरंत जो है आपके पास उतने अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत मॉडिफाई यहाँ से आकर के कर दीजिए आप कि अब आपके पास 500 मास्क नहीं है, सिर्फ 200 बचे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है, जो है ना आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको आप उतना ही एंटर करना है, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है आप यहाँ पे शो कर रहे हो, और डिजास्टर के टाइम पे उसको फिर कैसे सप्लाई करेंगे जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वही फिल करना है जो आपके पास अवेलेबल है आइटम। अगर जैसे ये मास्क है, आफ्टर मतलब 3 डे या 4 डे के बाद बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में, तुरंत जाकर के यहाँ से डिलीट कर, जो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था कि डेटा एंट्री करने के लिए, आइटम्स रिसोर्स को आईडीएन पोर्टल पर अपडेट करने के लिए। हमारा क्वेरी इन्वेंट्री है जिसके अंदर हमने 3 सब मेनू बना रखे हैं, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट। इसमें आप जाकर के डिपार्टमेंट वाइज जाकर के चेक कर सकते हैं क्या डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने जो है रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं, या कोई पुराना रिकॉर्ड है कितने, सारे के सारे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। 2 एंट्रीज हैं, एक 3 एंट्री हमने की थी, जो हमने डिलीट कर दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में, जो एंटर रिकॉर्ड है वो 2 ही है हमारे पास। यहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आइटम का नेम, उसका डिपार्टमेंट, ये सारी एंट्रीज। यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए अभी 2 थे, ठीक है। तो उसको जो है अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, 1000 और 2000 है, तो उसको जो है कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसको कैसे सर्च करेंगे, तो उसके लिए हमने डेट वाइज ने लगा रखा है। यहाँ पे आप डेट वाइज जाकर के ना उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बिफोर और आफ्टर डेट लगा रखा है। इसमें जाकर के आप देख सकते हैं आज की हमने जो एंट्री की है, यहाँ से आप अपने आइटम्स जो आपने इंसर्ट किया अपडेट, उनको जाकर सर्च करते हैं डेट वाइज जाकर के। यहाँ से जाकर के आप ना पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है अपना डेटाबेस देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस डिपार्टमेंट ने कितने रिकॉर्ड्स जो है इंसर्ट किए हैं, और उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हुई, उसकी लोकेशन जाकर के चेक कर सकते हैं। ये व्यू आइटम है, इसके अंदर 2 सब मेनू है, 100 आइटम डिटेल्स और 100 आइटम कोड। इनको हम जल्दी यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, इसकी यहाँ पर कुछ नया हम जल्दी ही शो करेंगे। इसके अंदर सेम ही है कि आइटम की डिटेल्स के बारे में और आइटम के कोड के बारे में है। ये कॉन्टेक्ट, इसमें आपके कोई भी शिकायत या सुझाव या कोई नया आइटम जो आपके पास अवेलेबल है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए आप हमें यहाँ से डायरेक्टली आकर के मेल कर सकते हैं। और आफ्टर यूज इस पोर्टल को यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप लॉग इन नहीं करेंगे तो 20 मिनट के बाद वो है ना ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ये हमारा होम पेज कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी अवेलेबल है, जिससे आप हमें 24/7 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं।
या यहाँ से हमें मेल भी भेज सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आइटम आपका इंसर्ट नहीं हो रहा है, पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा है, उससे रिगार्डिंग या कोई भी मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे 24/7 आवर्स संपर्क कर सकते हैं थ्रू मोबाइल नंबर के, ईमेल के। तो इस तरह से IDRN पोर्टल पे कि किस तरह से सोर्स की एंट्री करनी है और किस तरह से जनरल यूएस जो है कोई आइटम है उसको कैसे जो फाइंड करना है। Dharmendra, did you completed? हाँ, यस कंप्लीट। Okay. So, thank you so much for your wonderful online live demonstration about this new idea and portal, Mr. Dharmender. So now the time to discuss if there is any questions from if there is any question or discussion, if there is any suggestion, any complaint regarding this new idea and portal. I request to all the district officials, please kindly unmute your mic. You may please raise your question. Good afternoon, sir. This is DDMO Dhanbad. Yes, sir. Sir, this is just a humble sir submission. Is that can we give the subordinate login to our line departments so we can have a real-time data for automation? No, so you no. You are asking for you need a separate user ID password for your line department, or you may interested to share your district user ID password to your line department. If we can make a subordinate login password for our line departments, so they can or make automation by their own department itself. Okay, sir. Actually, as of now, we don't have any provision for the subordinate department user ID password. But we will take a high priority on your request, sir. If possible, definitely we will include that module so that user ID password you can from district itself you can create and you may please circulate to your subordinate department. So that is not an issue. But it takes time, sir. But already the same request has been received from Kerala state also and Tamil Nadu also. Some of the states requested. But we are in the process of developing the next further development in this new idea portal. Thanks for your wonderful, kind suggestion, sir. Thank you. Is there any suggestion or feedback or regarding any complaint regarding this idea portal? I request to all the district officer, please kindly unmute your mic. So this is a good suggestion from the district of Dhanabad. सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मेरा अनुरोध है, आपकी IDRN पोर्टल पर डेटा एंट्री आइटम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपका सुझाव हो, आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Is anyone from Bokora district, Chatra district, Deoghar district? Is anyone official from Deoghar district? No. Yeah. No, there is no issue. I understand what you have explained during the discussion. Except, hello? Kamal Lukun. Yes, sir. Minute, Balaji. Kamal Lukun. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Why is Bokaro not there? Let me check, sir. Sorry. Let me check, sir. Please check Bokaro and Deoghar. Where these two DDMOs are there? The letter has been given to them. Yeah, I am present here. Hello. Deoghar is Yeah. sitting, sir. Okay. हजारीबाग से भी हूँ, sir. Okay, sir. Okay. Hello. It's a humble request from National Institute of Disaster Management, New Delhi headquarters. So whatever you have the suggestion or feedback, please kindly submit. Sir, good afternoon, sir. Yes, DMO Lord Darga is also here. Yes. Sir, Pramo DDMO here. Okay. DMO Lord Darga is present here, sir. Okay, sir. Okay. DMO हजारीबाग present here, sir. Okay, sir. Okay.
If you have any concern, query, or suggestion, feedback, is there any complaint regarding this new IDN portal? You may please kindly unmute your mic and please tell me. Please discuss. Sir. Is there anyone from Dumka district, Gargaon district, Gota district, Gumla, Order is here, sir. Hazaribagh district? Sir, I have no question, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Kunti district. Okay, now question. I won't call any district by district. Now question is open to all. We have next 10 minutes more. I request to all the district officers once again. If you have any concern, query, or feedback or suggestion, please kindly unmute your mic. Whatever suggestion or your feedback, whatever suggestion, feedback, complaint you are registering with us, definitely we will take high priority. We will make a report also. We'll send it to our ministry. We'll send it to our National Disaster Management Authority. With the consultation of NDRF, we will develop this portal much useful and much user friendly. Feel comfortable. There is no point of hesitate in this regard. So and if possible, you can please write in the chat box as well. No issue. So in item deletion section, there should be checkbox for delete all items at a time. Mr. Surendra Kumar sir, thanks for your suggestion. Definitely we will include that. Option also for delete all option. Thank you so much. सर पलामू से बोल रहे हैं। हाँ बताओ सर। हाँ, ये जो है कि जब आपका नया सिस्टम पर जब माइग्रेट हुआ था सारा डाटा, तो उस समय डाटा जून उनमें जो है कि ये सारे डाटा नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी आज के समय में तो डाटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरा यही कंसर्न था कि पिछला डाटा जो है वो शो नहीं कर रहा है। यस सर, हमने ना उस डाटा को ना इंटीग्रेट किया था, तो उस समय वो जो है ना शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है पोर्टल पे शो हो रहा है। जी, तो यही मेरा पहले से तो यही कंसर्न था कि वो डेटा जो है कि हमारा फिर आ जाए, लेकिन मैं आज खोल करके देख रहा हूँ तो डेटा मेरा है। नहीं सर, बिल्कुल सर, डेटा को हम लॉस्ट नहीं कर सकते, इतना महत्वपूर्ण डेटा है और उसको हम लॉस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास पूरा बैकअप है, पूरा बैकअप प्लान है सर। जी, थैंक यू सर। वेलकम। डीडीएमओ धन्यवाद सर, वंस अगेन। यस सर। सर यदि कोई आइटम हम लोग जैसे एंट्री करते हैं तो हाउ मच टाइम योर पोर्टल विल टेक टू शो इट्स अपडेटेड वन टू द डिस्ट्रिक्ट सर? कितना टाइम लगता है और इससे रियल टाइम वी कैन सी इट द वेबसाइट? सर आप जैसे एंट्री करते हैं और आइटम को सबमिट करते हैं, उसके तुरंत बाद आप उस आइटम को जो है देख सकते हैं लिस्ट में जाकर के, कोई सी लिस्ट में जाकर के, जनरल लिस्ट में जाकर के या डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट में जाकर के या डेट वाइज में जाकर के या डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाकर के, कहीं भी जैसे आप सबमिट करने के बाद तुरंत देख सकते हैं। Earlier we have some issues. ये प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ही ना लो बैंडविड्थ से काम करता है। हेलो, हेलो, हाँ यस सर, बोलिए सर। आई एम डीडीएमओ दुमका सर। यस सर। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा इन IDRN, हम लोगों को जो पासवर्ड है वो चेंज करना चाहिए कितने दिनों के अंदर? नहीं सर, आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर पासवर्ड चेंज कराना है तो उसके लिए आप हमें ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। यस सर। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोई नहीं है। अब जो पासवर्ड हमने आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिए आप उसको जो है यूज कीजिए। अगर आपको पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कराना है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ना वो हमें मेल करेगा, ठीक है? उसके बाद हम यूजर आईडी पासवर्ड को चेंज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। This is the 26th state of this is the 26th state UTs of India, out of which we have already proposed 36 state UTs in India.
So the for specifically focusing up this particular program is we are expecting each and every one of you a better suggestion or feedback. Is there any complaint regarding this portal? So we will definitely improvise our portal as much as possible in the better way. So if there is any question, we may conclude with this permission of our Joint Director, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis. Sir has just now joined the meeting. Maybe. Sir, Yes, Balaji, I'm there. yeah. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Yes. थैंक यू वेरी मच। आई वुड मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग आए और आप लोगों ने अपना बहुत मूल्य समय जो है इस IDRN पोर्टल को समझने में लगाया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री मनीष तिवारी जी से, वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और हमें आगे के लिए गाइडलाइंस दें। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasisht ji. It was a nice interaction with the state officials, district officials, and the central. बहुत ही अच्छी ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया गया और मुझे लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट से, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आ रही है आपकी आवाज। यस सर। अच्छा, तो मैं वही कह रहा था, आई होप आई एम ऑडिबल, कि बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन हुआ है और ये हमें उम्मीद है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपनी समस्याओं का इसमें निदान जरूर मिल गया होगा। मैं NIDM से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो नंबर हैं वो अगर शेयर कर सके डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ, तो जब भी उन्हें इश्यूज होंगे, क्योंकि जैसे ही जब आपने कुछ सॉल्व किए हैं वो फिर से प्लीज स्विच ऑफ। तो जैसे ही जब कुछ समस्याएं आएंगी तो समस्याओं को आपसे वो आपके सामने रख के उसे त्वरित रूप से उसका निदान कर सकेंगे। दूसरी बात है कि जैसा आपने एम्फसाइज किया कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड को बड़े संभाल के रखना है, क्योंकि जैसा बताया गया है कि इससे मतलब किसी अगर गलत हाथों में लग जाए तो पूरे आपके डेटा के साथ कोई मैनिपुलेट कर सकता है। तो इस बात का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एंड स्टेट पे जो हम लोग हैं, इस बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो लेटर्स हैं वो हम इशू करेंगे। रिगार्डिंग जो आपने बताया कि स्पेशल आइटम्स, जैसे कि जो माइंस आधारित जो चीज़ें हैं जो हमें झारखंड के रूप में ज़्यादा यूज़ होंगी, वैसे चीज़ों के लिए विल सी कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम क्रेन और क्या क्या चीज़ें अगर एक्स्ट्रा चाहिए माइंस से रिलेटेड हों तो उनको यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विल सी टू इट एंड देन विल मेल इट बैक टू यू कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी है। बाकी चीज़ें इट वाज फाइन एंड अगर हमें कुछ इशू होगी वी विल टर्न बैक टू यू, वी विल कम्युनिकेट विद यू। थैंक यू फॉर सच अ नाइस प्रोग्राम एंड such a nice interaction with the state and district officials. Thank you, NID. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. And जैसा आपने बताया कॉन्टैक्ट डिटेल्स वैसे मैंने शेयर करी थी अपनी प्रेजेंटेशन में, लेकिन वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोबारा से बालाजी वुड शेयर इन दी चैट बॉक्स फॉर ऑल। हम लोग मोबाइल नंबर भी है इसमें, तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपका सर आभार प्रकट करूंगा श्री मनीष तिवारी जी का, जो कि पूरे कार्यक्रम के दौरान वो प्रेजेंट रहे और उन्होंने हमें सुना। जो भी कुछ हमारे उन्होंने जो है वो हाईलाइट किए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, निकाला समय, और इस IDRN पोर्टल को समझने में हमारा जो एक हमें जो सहयोग चाहिए था एक स्टेट गवर्नमेंट का, वो दिया। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारा प्रोग्राम पहले अभी हम लोगों ने प्रीपोन कर दिया था, जो हमारी डेट जो हमें मिली थी पहले, तो प्रीपोन किया विद इन द शॉर्ट नोटिस ऑफ अबाउट 7-8 डेज। श्री कमल जी के साथ मिलके बालाजी ने ये पूरा कार्यक्रम किया है। सो मैं श्री कमल जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे
इस IDRN का आयोजन जो है संभव कराया. Thank you very much, sir, and thank you to all. With this, I would conclude the program. Thank you, sir. Manish Tiwari, sir, thank you so much, and we'll interact on this matter more and other disaster management aspects through NIDM's other subjects on the same. Thank you very much, everyone. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I really very thankful to Shri Manish Tiwari ji, EFS Joint Secretary, and also Kamal ji. So, thanks for accepting our invitation for in this short notice. Once again, thanks to all the district official. Dhanyavad.